Hello everyone. Today we are going to find the worst case time complexity. So the first is the for loop. In for loop, we will follow the multiplication. Okay. So there is a for loop. I is equal to 1, I less than equal to n, I plus plus. Initialization, condition and increment. फिर इसमें हमारे पास स्टेटमेंट आती है a इज इक्वल टू a माइनस बी विच इज अ कांस्टेंट. तो जब भी हमारे पास फॉर लूप आता है 1 से n तक, इसकी वर्स्ट केस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो जाती है ओ एन. ठीक है. और कांस्टेंट की वर्स्ट केस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है ओ वन. अब मैंने आपको बताया कि फॉर लूप में हमारे पास मल्टीप्लीकेशन होती है. So due to which the answer will be n into 1, that is n. So the worst case time complexity will be O(n). So now the second point, that is a nested loop. Nested loop का मतलब एक for loop के अंदर एक और for loop, उसके अंदर एक और for loop. ठीक है. So on. So इसमें भी हमारे पास multiplication होती है. We have a for loop I is equal to 1, I is less than equal to n, I plus plus. फिर हमारे पास एक और फॉर लूप आता है, दैट इज j इज इक्वल टू 1, j इज लेस देन इक्वल टू n, j प्लस प्लस. फिर हमारे पास आता है कांस्टेंट, दैट इज a इज इक्वल टू a प्लस b. तो इसकी वर्स्ट केस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो जाएगी? ओ एन, इसकी ओ एन और इसकी ओ वन, क्योंकि ये कांस्टेंट है. अब इसका मल्टीप्लाई कर देंगे n इंटू वन, दैट इज n स्क्वेयर. सो ओ एन स्क्वेयर इज द वर्स्ट केस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी. नाउ वी हैव द कंसेक्यूटिव स्टेटमेंट. कंसेक्यूटिव स्टेटमेंट जैसे एकदम से एडिशन की स्टेटमेंट आ गई, फिर सब्ट्रैक्शन की स्टेटमेंट, फिर मल्टीप्लिकेशन की, फिर फॉर लूप की. सो इन कंसेक्यूटिव स्टेटमेंट में हमारे पास एडिशन करते हैं. तो हमारे पास दी गया है a इज इक्वल टू a प्लस बी. Then we have for loop, that is I is equal to 1, I is less than equal to n, I plus plus. Then there is a is equal to x plus a, which is constant. Then for j is equal to 1, j is less than equal to n, j plus plus. Then again we have a statement, that is c is equal to c plus y. Now a is equal to a plus b, इसका worst case time complexity हो जाएगा O1. Now we have the for loop. So the worst case time complexity of the for loop is On. Okay. Now there is a constant. So the worst case time complexity will be O1. Then for loop On, constant O1. As I already told you that in for loop we do multiplication. So इसकी On है, इसकी O1 है, तो ये मल्टीप्लाई करके On बन जाएगा. इसकी भी On है और इसकी कांस्टेंट की O1 है, इसको मल्टीप्लाई करके On बन जाएगा. और a इज इक्वल टू a प्लस बी, इसकी O1 है. अब इन तीनों को ऐड कर देंगे, दैट इज n प्लस 1, दैट इज On. ठीक है. ये बन जाएगा हमारे पास n प्लस 1 मतलब 2n प्लस 1. ठीक है. 2n प्लस 1, तो इसकी हाईएस्ट ऑर्डर टर्म कौन सी है? n. तो बेसिकली n इज द हाईएस्ट ऑर्डर टर्म, सो इट इज द वर्स्ट केस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी. Now the fourth example, that is if else statement. If n is less than 10 for I is equal to 1, I is less than equal to n, I plus plus, then again constant we have a is equal to a plus b. Else for then there is again condition, initialization, and there is a constant. Then again there is a for loop and a constant. So what will be the worst case time complexity? So the worst case time complexity of this for loop will be On. Okay, and this constant is O1, so it will be multiplied. As I already told you, it is multiplied for the worst case time complexity, so it will be On. Then else there is once again for loop and a constant n into 1, that is n, so it's On. Once again there is a for loop, so it will be On and a constant O1, n into 1, that is n. Okay, so now we need to find the worst case time complexity. So we have if जो इफ स्टेटमेंट है उसकी वर्स्ट केस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी On है. ठीक है. और जो एल्स है, जैसे On था और पिछले वाले में भी On था. ठीक है. तो On इंटू n, On कितना हो गया? n स्क्वेयर. ठीक है. तो एल्स वाले की वर्स्ट केस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी On स्क्वेयर है. तो हमने इफ एल्स में चेक करना है जो इन दोनों में से अपर बाउंड होगा, हाईएस्ट ऑर्डर टर्म होगी, वो हमारे पास वर्स्ट केस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है n स्क्वेयर. सो इट विल बी On स्क्वेयर. So fifth point we have logarithmic complexity. ठीक है. For I is equal to 1, I is less than equal to n, I plus plus. Then we have statement I is equal to I into 2. अब आप कहोगे कि इसकी वर्स्ट केस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी On हो जाएगी, है ना? On, बट ऐसा नहीं है. इसकी On क्यों नहीं होगी? क्योंकि इसका एक बार आंसर देखिए क्या आएगा. जब मैंने 1 पुट करा, ठीक है, तो 1 इंटू 2 2 आ गया. 2 पुट करा, फिर 4, फिर 8. तो ये कैसे जा रहा है? बेसिकली ये जा रहा है 1, फिर 2 स्क्वेयर, फिर 2 क्यूब,
फिर 2 पावर 4, तो मतलब ऐसे जा रहा है, ठीक है, 2 पावर k की फॉर्म में जा रहा है। 2 पावर k की फॉर्म में मतलब इट इज लॉगरिथमिक फंक्शन, ठीक है। अगर ये ऐसे जा रहा होता कि जैसे 1 2 3 4, ठीक है, तब हमारे पास ओ एन आता, बट इसमें हमारे पास 2 पावर k की फॉर्म में जा रहा है, सो दैट्स व्हाई द वर्स्ट केस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी विल बी ओ ऑफ लॉग n।